Okay, hello everyone. Last time we have studied about two things, Darwin triads and Newland's octave law. Today our topic is Mendeleev's periodic table. What Mendeleev discovered, yeah, arranged the element in how he did. Let us study. So at the time of Mendeleev, there were 63 elements. ठीक है, known to that. तो ऐसा नहीं था कि नेचर में थे तो ज्यादा ही बट जो नॉन थे वो 63 ही थे. ठीक है. अब व्हाट ही डिड, ही स्टडीड द हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स. मतलब उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है काफी रिएक्टिव है, सो दैट these two element will react with most of the metals. So that is why I decided to study hydrides and oxides of metal. ठीक है. Okay. And what Mendeleev stated at that time, Mendeleev said that the properties of elements are the periodic function of their atomic masses. What does it mean at the periodic function of their atomic masses? मतलब कि if you arrange the element in the increasing order of their atomic mass, then the properties will repeat after some regular interval. Okay, if someone is going to arrange all the elements in the increasing order of their atomic mass, then their properties will repeat. Properties of elements, okay, properties will repeat after definite or some fixed interval. And Mendeleev, what Mendeleev constructed, he did two things. He made a periodic table that contains vertical columns called groups. The vertical columns are called groups, and the horizontal rows are called periods. ठीक है. So there are two things. I'll show you what are the vertical columns. So in this group 1, 2, 3 है ना, these are vertical columns ना, so these are groups. Okay, so there are how many groups? There are 8 groups. ठीक है. In Mendeleev's periodic table there are 8 groups. And what about the periods? Let us see. uh, uh, don't consider them first two rows as a period, because you didn't place any element here. Just it is the representation of the, it's a part of the representation of the periodic table. Okay, our element started from first. This one is the first row. This is the first row because first element hydrogen is placed here. Okay, clear? So this is the first row, this is the horizontal row, and this is second row. And what are these rows are known as? These rows are known as periods. Okay, and the vertical columns are known as group. Okay, there are 5 rows, matlab there are 5 periods. Sorry, एक minute. Yes. There are 6 rows, and it means there are 6 periods and 8 groups in Mendeleev's periodic table. Now let us see. So here you can see, uh, in first group he write R2O and RH. What does it mean? Ki the basic formula of oxides of group 1. The basic formula of oxides of group 1 is R2O. What is R here? R is the element of group 1. Group 1 के जो element है वो R है यहाँ पर. And what is RH? RH is the formula for hydrides of group 1 element. ठीक है. So if like lithium hydride, if I'll ask you what will be the formula of lithium hydride, then according to this equation RH should be na, because lithium is a member of group 1 है ना. Lithium is a member of group 1, then lithium hydride LiH will be the formula for lithium hydride. Now can I ask you what will the formula for potassium oxide? Potassium is a part of group 1, it means it will also follow this formula. And R2O is a general formula for the oxides of group 1 element, and potassium oxide will be K2O. Potassium oxide will be K2O. Similarly, you can find out other oxides and hydrides. Okay, when you move to group second, the formula will change. Okay, because the valency is changing now. When you move from group 1 to group 2 to group 3, the valency will change, and that's why the formula will change. So for group 2 oxides, formula for oxide is RO. For group 3 it is R2O3. For group 4 it is RO2. For group 5th it is R2O5, and for group 6 it is RO3, and for group 7th R2O7, and for group 8 RO4. Okay, it's a very simple one. Okay, now similarly hydrides.
first RH, second RH2, third group RH3, fourth group RH4, fifth group RH3, again sixth group RH2, and seventh group RH. And about it, he didn't mention any hydrides because according to him, group 8 elements don't form any hydrides. That is why he doesn't provide any formula, or maybe he can't explain all the hydrides of group 8 by a single formula. Okay, that is why it is not provided. Okay, now let us study. He placed all the elements in the increasing order of their atomic mass. So let us check out whether he placed correctly or not. Okay, just when you start moving from hydrogen to lithium, then beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, then sodium, magnesium, then there will be aluminum, and then there will be silicon. So you can see one thing here. Aluminum is having atomic mass 29.98 and silicon is having 28.09. Okay, so it should be increased when you move along the period, है ना? It should be increased. Atomic mass should be increased because the order is their increasing order of the atomic mass. So all the funda on which this predictable was prepared on the basis of the atomic mass. So when you move from sodium to magnesium, so mass is increasing, है ना? Atomic mass is increasing. Again magnesium to aluminum we are moving, it is again increasing. But when you move from aluminum to silicon, it is decreasing. But according to Mendeleev, we should place all the elements, we must place all the elements in the increasing order of the atom mass. But this is not the increasing order, this is a decreasing order. है ना? So this sequence is wrong. है ना? Silicon should be placed before aluminum, then aluminum should be placed here. है ना? This should be there, but it is not be. It is not present in Mendeleev's table because Mendeleev placed them incorrectly. Mendeleev should place silicon in place of aluminium and aluminium in place of silicon, but he placed them incorrectly. Why? I told you why he placed. Now next come to chlorine, then potassium, calcium, scandium, titanium. Then you come to vanadium and chromium. Now vanadium, chromium to go. When you move from titanium to vanadium, the mass is increasing. But when you move from vanadium to chromium, again mass is decreasing. Matlab here vanadium is having 50.94 and chromium is having 50.20. So there is a decrease in atomic mass when you move from vanadium to chromium. So it is also a wrong placement, है ना? Okay, then come to manganese to iron, again increasing. Then manganese iron to cobalt is also again increasing, but cobalt to nickel it is again decreasing because cobalt is having 58.93 and nickel is having 58.71. 58.93 is a larger number as compared to 58.71. So what I noticed, what other noticed that he placed some elements incorrectly, not in their increasing order of their atomic mass, but he said, ओके उन्होंने एक चीज कह दी है कि मैं अगर सभी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखता हूँ तो जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो एक पीरियड के बाद रिपीट होती हैं, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं. बट जब उन्होंने रख के दिखाया तो हमने देखा कि कुछ एलिमेंट्स तो करेक्ट ऑर्डर में रखे ही नहीं हुए, है ना? यहाँ पे ये गड़बड़ है, ये वेनेडियम क्रोमियम गड़बड़ है, कोबाल्ट निकल गड़बड़ है. तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा थोड़ा ना था, उन्हें रखना नहीं आ रहा था. वो इतने स्टूपिड थोड़े ना थे कि उनको बेसिक कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो गए. एक्चुअली जब वो रख रहे थे ना तो उन्होंने देखा कि जो अल्यूमिनियम है ना, अल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज है वो कार्बन से सिमिलर नहीं है. अल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज बोरॉन से सिमिलर है, वेराज सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज जो है वो कार्बन के सिमिलर है. ठीक है, उन्होंने बोल तो ये दिया कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, बट जब वो रखने लगे तो वहां पे उन्होंने कुछ गड़बड़ भी कर दी. गड़बड़ ये करी कि उन्होंने देखा कि अल्यूमिनियम जो है कि उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है इस ग्रुप 3 से, थर्ड ग्रुप से सिमिलर है, और सिलिकॉन की ग्रुप 4 से सिमिलर है. दैट इज वाई उन्होंने सिलिकॉन को यहाँ रखा और अल्यूमिनियम को यहाँ रखा. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर वेनेडियम एंड क्रोमियम में भी उन्होंने देखा कि वेनेडियम की प्रॉपर्टीज इससे मिलती हैं, ये जो आपका ग्रुप 5 बी है, एंड क्रोमियम की 6 बी से मिलती है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे सिमिलरली को बाहर निकल कर. ठीक है, तो ऑल्दो यहाँ पर आपको कुछ अच्छा मिलेगा अभी, बट ऑल्दो मेंडलीव का जो प्रेडिक्शन था वो काफ़ी उस टाइम पर काफ़ी ऑब्वियसली एडवांस था, सक्सेसफुल था एज कम्पेयर टू न्यूलैंड एंड डॉपलर जो बताया गया था. मेंडलीव ने बहुत
काम इजी कर दिया था। ये टेबल काफ़ी ऑल्दो देखने में ऐसा लग रहा है छोटा सा है विजन, बट ये टेबल उस टाइम पर बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ओके, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके बाद अचीवमेंट्स के बाद चले जाते हैं। ठीक है, अचीवमेंट्स क्या है? हाँ, एक चीज़ और दिखाते हैं आपको। यस यस, आई शुड शो यू। यू कैन सी यहाँ पर आपको गैप दिख रहा है ना, एल्यूमिनियम के बाद यहाँ कुछ आना चाहिए था ना। यहाँ पे अगर गैलियम रख दिया है, बट यहाँ पे कुछ रखा नहीं है। सिमिलरली सिलिकॉन के बाद भी यहाँ कुछ आना चाहिए था, उन्होंने नहीं रखा है ना, खाली सा दिख रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो टेबल में कुछ गैप रखे हैं, और ये गैप उन्होंने क्यों रखे हैं? ये गैप उन्होंने, जैसे यहाँ पर इधर यहाँ पर कुछ नहीं रखा इस वाली सीरीज में, है ना, यहाँ पर भी कुछ नहीं रखा। ये गैप उन्होंने इसलिए रखे हैं क्योंकि उस टाइम क्या था, ओनली मैंने आपको बताया 63 एलिमेंट्स वर नॉन, है ना। तो जो ने नॉन थे उन्होंने उस अकॉर्डिंग टेबल बना दिया, बट उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी कुछ होना चाहिए था। मतलब जब वो अरेंज कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के बाद गैलियम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने स्पेस खाली छोड़ दिया। इंडियम आएगा, फिर यहाँ और सिमिलरली सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ कुछ स्पेसेस खाली छोड़े। ठीक है, सो दैट कि जब इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो तो उन्हें यहाँ पर रखा जा सके। ठीक है, मेंडेलिव ने यहाँ पर स्पेसेस खाली छोड़े थे सो दैट कि जब ये एलिमेंट डिस्कवर होंगे, अगर यहाँ पर वो रखे जा सकें। इससे क्या हुआ, इससे एक रिसर्च, ऑब्वियसली रिसर्चर्स को एक वो मिल गया, है ना, क्या क्लू पॉइंट। उनको ये पता चल गया कि डेफिनेटली ऐसा कोई एलिमेंट होगा जो यहाँ पर एल्यूमिनियम के नीचे आएगा और यहाँ पर सिलिकॉन के नीचे आएगा। ठीक है, ऑल्दो ये गैलियम जर्मेनियम लिखा हुआ है, बट ये लेटर डिस्कवर्ड एलिमेंट है। ये जब मेंडलीव ने टेबल बनाया था उस टाइम में डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, तो यहाँ पर उन्होंने खाली स्पेसेस को छोड़ा था। ठीक है, ओके। तो मेंडलीव की अचीवमेंट भी देख लेते हैं। मेंडलीव ने कुछ लेफ्ट सम ग्रुप्स इन प्रेडिक्टेबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि यहाँ पर पक्का कोई ना कोई दूसरा कोई और एलिमेंट है जो हमें नहीं पता है, वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, उन्होंने एक प्रेडिक्ट किया कि एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स इन हिज टेबल। तो इन्होंने क्या किया, जो वहाँ पर स्पेस खाली छोड़ी ना, ठीक है, उनको कुछ नाम दिया। खाली इन द सेंस कि उन्होंने ऐसे उनको एलिमेंट तो पता नहीं था कौन सा है, तो उन्होंने क्या किया कि जो खाली स्पेस थे उनको नाम दिया। संस्कृत न्यूमेरल का यूज करते हुए एका यूज किया। और एका के आगे क्या लिखना होता है, देखो मैं बताती हूँ एका का यूज कैसे किया। देखो वो कहते थे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, अभी दिखाते हैं। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। स्कैंडियम कहाँ है आपका? Can I see scandium? Yes, here is scandium. Gallium ये रहा और germanium ये है. G is the symbol for germanium, Ga is the symbol for gallium and Sc is the symbol for scandium. तो ये इस टाइम डिस्कवर नहीं थे तीनों। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, गैलियम की जगह एक नाम रखा। क्या रखा? एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम मतलब जो एल्यूमिनियम से नेक्स्ट वन होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम से जो नेक्स्ट मेंबर आएगा जो उस टाइम डिस्कवर नहीं था, जो कि गैलियम है। गैलियम उस टाइम डिस्कवर नहीं था, तो उन्होंने गैलियम की जगह क्या लिखा? एका एल्यूमिनियम। सिमिलरली सिलिकॉन की जगह क्या लिखा उन्होंने? एका सिलिकॉन। सॉरी, जर्मेनियम की जगह क्या लिखा? एका सिलिकॉन, बिकॉज जर्मेनियम आपका डिस्कवर नहीं था, तो एका सिलिकॉन बिकॉज वो सिलिकॉन के बाद आ रहा है। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे उन्होंने प्रेडिक्शन करी, ये उनकी एक वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है। ओके, नाउ सेकेंड इज, देखो मैंने लिख दिया एका एल्यूमिनियम, गैलियम के लिए एका सिलिकॉन, है ना, और जर्मेनियम के लिए एका बोरॉन यूज किया, है ना, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। ठीक है, तो स्कैंडियम के लिए एका बोरॉन यूज कर दिया उन्होंने, गैलियम के लिए एका एल्यूमिनियम और जर्मेनियम के लिए एका सिलिकॉन। उसके बाद दूसरी अचीवमेंट क्या है, देखो आप अगर उनके टेबल देखो ना, पीरियोडिक टेबल देखो आप मेंडलीव का, तो आप देखो उसमें नोबल गैसेस कहीं नहीं दिख रही है ना, हीलियम, नियोन, ये सब कुछ नहीं है उसके टेबल में, क्योंकि उस टाइम वो डिस्कवर्ड नहीं थी। तो उन्होंने ऑब्वियसली उनके लिए, अगर आपको उस गैसेस को प्लेस करना हो ना टेबल में, आप बिना
बाकी सारा टेबल डिस्टर्ब किए आराम से प्लेस कर सकते हैं, है ना। आप बाकी जैसे आपने यहाँ पर नेक्स्ट एक ग्रुप ऐड कर दो, है ना। नेक्स्ट ग्रुप में आप ऐड करके आप यहाँ पर नोबल गैसेस के बारे में नोबल गैसेस को लिख सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो इस टेबल में, है ना। कि उस टाइम तो वो नॉन नहीं थी, बट बाद में जैसे वो नॉन हुई तो आप बिना इस टेबल को छेड़े हुए नया एक ग्रुप बनाते, क्योंकि जो नोबल गैसेस है ऑब्वियसली उनकी प्रॉपर्टीज इन सभी ग्रुप से, इन सभी मेंबर से डिफरेंट है ना। नोबल गैसेस का आपने देखा होगा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी अलग से लास्ट ग्रुप है, वहां पर आपकी नोबल गैसेस रहती हैं। तो आप यहाँ पर भी ऐसे एक नया एक्स्ट्रा ग्रुप बनाकर नोबल गैसेस को प्लेस कर सकते थे। तो नोबल गैसेस आप बिना टेबल को डिस्टर्ब किए भी आगे फ्यूचर में इस पीरियोडिक टेबल में आप लगा सकते थे, इंक्लूड कर सकते थे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि ऑब्वियसली उन्होंने इस इतना सिस्टमैटिक वे में बनाया है कि आपको कुछ छेड़ना भी नहीं पड़ा, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशन की भी बात कर लेते हैं, है ना। लिमिटेशन की बात देखो, एक तो पहली तो यही है कि ये कि उन्होंने एक तो बात देखो कि उन्होंने जो कई बार बीच बीच में गड़बड़ किया है ना, उन्होंने प्रॉपर्टीज चेक करी, जैसे कि हॉल्दो यहाँ पर ये उन्होंने सही किया, ये सही है कि बोरोन की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम के सिमिलर है और कार्बन की प्रॉपर्टीज सिलिकॉन की जैसी है, कि रखा तो उन्होंने सही है, बट जो उनका स्टेटमेंट था वो गड़बड़ हो गया है ना। उन्होंने तो ये कह दिया कि हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के उसमें रख रहे हैं, ठीक है, उस ऑर्डर में रख रहे हैं जिस ऑर्डर में एटॉमिक मास बढ़ रहा है, बट इस ऑर्डर में मास नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं कहीं बीच में गड़बड़ आ रही है। जैसे एल्यूमिनियम सिलिकॉन का था बताया, वेनेडियम क्रोमियम का बताया, कोबाल्ट निकल का बताया, बीच बीच में प्रॉब्लम आ रही है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन तो गलत है ना। या तो उन्हें एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रखना चाहिए था, या फिर अगर वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे हैं तो सिलिकॉन को यहाँ होना चाहिए था, एल्यूमिनियम को यहाँ होना चाहिए था, बट वो भी नहीं रख सक पा रहे थे। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है कार्बन से ना, तो इस ग्रुप में कार्बन वाले ग्रुप में एल्यूमिनियम को कैसे रखते हो। तो यहाँ पर एक हमको गड़बड़ दिखा है, बट उस गड़बड़ का ये मतलब नहीं है कि उन्होंने गलत कर दिया या कुछ हुआ। इस गड़बड़ का मतलब ये है कि कुछ तो मतलब एक ऐसा, हाँ ऑल्दो देयर सम प्रॉब्लम, बट इससे हमको ये समझ में आया कि कुछ तो इस टेबल में रेक्टिफाई होने की जरूरत है, कुछ तो इम्प्रूवमेंट चाहिए, है ना। बिकॉज अगर ये गड़बड़ ना होती तो हम सोचते कि हाँ उन्होंने जो बोला करेक्ट है और ऐसा ही हो रहा है, बट कुछ चीज़ें जो उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, उन्होंने जो कहा था उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो उससे हमें समझ में आया कि कुछ तो इम्प्रूव करने की जरूरत है। ओके, उसके बाद एक और अचीवमेंट, एक और जो लिमिटेशन है वो ये है हाइड्रोजन। हाँ, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। उन्होंने हाइड्रोजन को कहाँ रखा है बच्चे? एल्कली मेटल के साथ रखा है। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को एल्कली मेटल के साथ रख दिया, बट अगर आपको सच में बताऊं ना, जो हाइड्रोजन है ना उसकी प्रॉपर्टीज ना दो ग्रुप से मिलती है। दो ग्रुप कौन सा? एक तो ये एल्कली मेटल वाला, इससे भी उसकी प्रॉपर्टीज मिलती है केमिकल, और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज इस ग्रुप से भी मिलती है। ये आपका जो आपका 7th ग्रुप है ना, 7th है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी प्रॉपर्टीज इससे भी रिजेंबल करती है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना ये मेटल नॉन मेटल ऐसे चलता रहता है। ये कभी पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट भी शो करता है जिसे मेटल करती है, और हाइड्रोजन आपका नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट भी शो करता है जैसे ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन करते हैं। तो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज भी रहता है कभी कभी, कभी कभी -1 चार्ज भी रहता है। जब वो +1 चार्ज शो करेगा तब वो कैसे बिहेव करेगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के जैसे। जब वो -1 चार्ज शो करेगा तब वो बिहेव करेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के जैसे। तो ऑल दो उसकी प्रॉपर्टीज दोनों से सिमिलर है, इस वाले ग्रुप से भी, 7th ग्रुप से भी और फर्स्ट ग्रुप से भी। तो उन्होंने इसको फर्स्ट में क्यों रखा? मतलब इसकी पोजीशन जस्टिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज खाली फर्स्ट से नहीं मिलती ना, 7th से भी तो मिल रही हैं। तो सिर्फ फर्स्ट में ही क्यों रख दिया, 7th में क्यों नहीं रखा? या फिर कुछ और तरीका क्यों नहीं सोचा जिससे दोनों बातें सेटिस्फाई हो जाए? तो ये एक और लिमिटेशन है मेंडलीव के टेबल की, ठीक है। तो हाइड्रोजन को देखो देखो यहाँ पे दिखा रखा है, जैसे सिमिलरिटी, जैसे हाइड्रोजन का HCl होता है, सोडियम का NaCl होता है, हाइड्रोजन का H2 होता है, सोडियम का Na2 होता है, हाइड्रोजन का सल्फाइड H2S होता है, सिमिलर सोडियम का Na2S होता है। तो मतलब हाइड्रोजन सोडियम से सिमिलर, एल्कली मेटल से सिमिलर है, वेयर एज हैलोजन से भी सिमिलर है। जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है उनसे भी उनकी प्रॉपर्टीज मिलती है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर कुछ भी
उन्होंने एग्जैक्ट एक नई अच्छी फिक्स एक सही पोजीशन उनको नहीं दे पाया हाइड्रोजन को, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें आइसोटॉप्स की, उन्होंने आइसोटॉप्स के बारे में कुछ नहीं कहा मेंडलीव ने। ऑल्दो मेंडलीव के टाइम पर आइसोटॉप्स के बारे में कोई कुछ पता नहीं था लोगों को, ये नहीं पता था कि आइसोटॉप्स भी एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट्स के। तो बट अगर हम बाद में देखें कि जब मेंडलीव के बाद आइसोटॉप डिस्कवर्ड हुए हैं ना, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। मतलब कार्बन के जैसे 3 है ना, 12, 13 एंड 14, उन तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम ही है, 6 ही है, बट मास क्या है, डिफरेंट है। 12 का 12 है, 13 कार्बन का 13 है, 14 कार्बन का 14 है। तो इस हिसाब से हम आइसोटॉप्स को कहाँ रखेंगे, क्योंकि वो तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के लिए कह रहे हैं। मेंडलीव ने क्या कहा था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। तो आइसोटॉप्स को कहाँ रखें, आइसोटॉप्स के भी तो मास डिफरेंट होते हैं। तो आइसोटॉप्स की पोजीशन को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते इस टेबल में, है ना। अगर रखने लगेंगे तो सारा टेबल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। दैट इज ऑल्सो अगेन अनदर वन शॉर्टफॉल ऑफ दिस प्रेडिक्टेबल दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय मेंडलीव, ठीक है। कि हमने कि वो आपके आइसोटॉप्स के बारे में कुछ नहीं कह कर पाए कि आइसोटॉप्स अगर डिस्कवर होते या कुछ होता, जैसे उन्होंने कुछ एलिमेंट की फ्यूचर जैसे प्रिडिक्शन कर दी है कि हाँ ये डिस्कवर होना चाहिए, यहाँ पर कोई एलिमेंट आना चाहिए जिसका नाम एका एल्यूमिनियम रख दिया, एका सिलिकॉन रख दिया, एका बोरोन रख दिया स्कैंडियम का, ठीक है, ओके। तो आइसोटॉप्स, सभी एलिमेंट्स की आइसोटॉप्स एक मेंडलीव टेबल को बहुत चैलेंज करते हैं, बिकॉज बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जिनके आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम उनको भी इंक्लूड करें तो मेंडलीव का टेबल सच में बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं बचेगा उसमें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन थोड़े से देख लो, मॉडर्न टेबल तो मैं कल कराऊंगी। use Mendeleev's by using Mendeleev's periodic table to predict the formula for the oxides of the following elements। आप इनके ऑक्साइड्स का फॉर्मूला बता सकते हो। अब देखो इनके ऑक्साइड्स का फॉर्मूला कैसे पता चलेगा, जब आपको ये पता हो कि कुछ ग्रुप का मेंबर है। जैसे कि पोटेशियम आपका फर्स्ट ग्रुप का मेंबर था तो उसका फॉर्मूला क्या था, M2O। कार्बन आपका ग्रुप 4 का मेंबर है तो उसका फॉर्मूला था MO2, है ना। सिमिलरली एल्यूमिनियम आपका ग्रुप 3 का मेंबर है, दैट इज M2O3, है ना। तो ऐसे ऐसे करके सिलिकॉन आपका ग्रुप 4 का है तो अगेन CiO2, ओके। बेरियम आपका ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो MO, सिंपल BaO, RO जिसे आप बोलते हो, मैं M बोल रही हूँ, R बोल दो आप, ठीक है, RO, ठीक है। उसके बाद तो पूछा है कि एल्यूमिनियम गैलियम के अलावा कौन से दो अलग एलिमेंट है जो डिस्कवर किए गए, जो मेंडलीव ने छोड़ दिए थे, मैंने भी बताया था, स्कैंडियम और जर्मेनियम, ओके। तो क्या क्राइटेरिया यूज किया मेंडलीव ने फॉर क्रिएटिंग पीरियोडिक टेबल, क्या क्राइटेरिया यूज किया था, उन्होंने किस क्राइटेरिया को अपना बेस बनाया, एटॉमिक मास को। उन्होंने एलिमेंट्स को प्लेस किया इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। व्हाई डू यू थिंक दैट नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप, आपको ऐसा क्यों लगता है कि नोबल गैसेस को सेपरेट ग्रुप में बना रखना चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि नोबल गैसेस का जो बिहेवियर है, जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से डिफरेंट है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स से प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट रहती हैं। बाकी एलिमेंट जनरली रिएक्टिव होते हैं, नोबल गैसेस रिएक्टिव नहीं होती, इनर्ट होती हैं, ठीक है। इसलिए उनको हमें लगता है कि सेपरेट ग्रुप में रखना चाहिए था। यहाँ पर एक चीज हमने आपको बतानी थी, क्या कि ये जो हमने इन्होंने इनको प्रॉपर्टी, इनको एलिमेंट्स को इस ऑर्डर में प्लेस कर दिया ना, इसका मतलब समझो ना, मैंने कहा था कि जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो एक इंटरवल के बाद रिपीट होंगी। रिपीट होने का मतलब कि लिथियम की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो फिर सोडियम की होंगी, सोडियम की जो प्रॉपर्टीज होगी वो पोटेशियम की होंगी, और ये सब जिनकी सेम प्रॉपर्टीज हो रही हैं वो एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। सिमिलरली बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज है वो मैग्नीशियम से सिमिलर है, मैग्नीशियम की कैल्शियम से सिमिलर है, ये भी सब एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। बोरोन की एल्यूमिनियम सिमिलर है एल्यूमिनियम की गैलियम से, गैलियम के इंडियम से, कार्बन के सिलिकॉन से, सिलिकॉन के जर्मेनियम से, जर्मेनियम के टिन से, टिन के लेड से, नाइट्रोजन के फॉस्फोरस से, फॉस्फोरस के आर्सेनिक से, आर्सेनिक से एंटीमोनी से, एंटीमोनी से बिस्मथ की, ठीक है। तो एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स यहाँ पर ऐसी ऑर्डर में हमने प्लेस किए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। तो एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर है, ओके, नॉट सेम। There is a difference between same and similar.
क्या डिफरेंस है? सेम मतलब एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम नहीं होती, सिमिलर मतलब कुछ हद तक सिमिलर, कुछ चीजें सेम होती हैं और कुछ चीजें सेम नहीं भी होती। तो सिमिलरिटी की बात करते हैं हम, एग्जैक्ट सेम तो कोई नहीं हो सकता, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। टुडे वी विल स्टडी अबाउट मोर्टन पीरियड टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मेंडलीव का ये सब आपको सब पढ़ना है, डबल ट्रायड्स, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और न्यूलैंड से, मेंडलीव से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बट अब डिटेल में जो पढ़ना है वो मॉडर्न पीरियड टेबल पढ़ना है, जो कि अब तक का सबसे सक्सेसफुल अटेम्प्ट है एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को लेकर, ठीक है। ओके।